गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो व्हाट इज प्रिज्म फर्स्ट। प्रिज्म इज a wedge shaped device. Wedge means solid triangle. तो prism is a wedge shaped transparent optical device used for refraction. A prism is bound by at least two non-parallel faces. So we can say prism is a wedge shaped or you can say solid triangular optical device having at least two non-parallel faces. It is a transparent device used for refraction of light. Basically, this is having three faces: face AB, face AC, and face BC. These three faces are the common face of a prism. The face BC is called base of prism, and other than the base, other two faces are called refracting face. AC and AB in this particular prism are called refracting face. If I make AB as base, then AC and BC will be refracting face. Angle A is called prism angle or apex angle. Basically prism angle is the angle opposite to the base. जो भी base होता है उसके opposite angle को मैं prism angle कहता हूँ. If I assume AB as base, then C is going to be the prism angle. If I assume AC as base, then angle B is going to be the prism angle. तो prism angle or apex angle is the angle opposite to the base. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी प्रिज्म की, इफ ए प्रिज्म इज प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम देन इट ऑलवेज बेंड्स द रेज टुवर्ड्स इट्स बेस. एक प्रिज्म अगर रेयर मीडियम में रखा हो तो अपने ऊपर पड़ने वाली रेज को हमेशा अपने बेस की तरफ बेंड करता है. दिस वी कॉल बेस बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रिज्म. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म. एक प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होगा, लेट अस सी. I have assumed the prism ABC. एक prism मैंने ABC मान लिया having prism angle A and base BC. AC and AB are the refracting face of the prism. Any ray PQ is made incident at point Q on the face AB. N1 is the normal on this face. If there would be no prism, then this ray would go along this path. But because of the presence of prism, when ray enters from rare to denser medium, I assume outside medium is mu1 or inside medium is mu2, again outside is mu1. So when light ray gets into denser medium, it bends towards normal, making an angle R1 with this face. ये R1 है angle of refraction at face AB. This ray when comes at point R, so QR is taken as the refracted ray. This ray when comes at point R, then it goes from denser to rare medium and bends away from normal end to on face AC, and ray RS is called emergent ray and E is called angle of emergence. R2 is at this face I take an angle R2. R2 is angle of refraction at face AC. E is called angle of emergence at face AC. Now, if I say this ray is going along this path, but because of the prism this is bent, so this is the deviation produced by the first phase that we call delta 1. So here delta 1 is the angle of deviation produced on first phase. This angle is going to be the angle of deviation on second phase. So delta 1 and delta 2 are the angle of deviation on second phase. If I take delta 1 and delta 2 are interior angle, and the sum of these two angles will be equal to the third exterior angle. So we can call delta equal to delta 1 plus delta 2, that we call total deviation. So delta is angle of total deviation. Delta is called total deviation angle. So this way a prism causes refraction to a light ray. Once again, ray PQ is incident ray, QR is refracted ray, and RS is emergent ray. Angle I is angle of incidence. Angle R1 and R2 are angle of refraction on first and second phase.
Angle E is called angle of emergence, and delta 1 and delta 2 are called angle of deviation on first and second phase. Delta is called total deviation angle. So this is the reflection through a prism. From figure, अगर मैं फिगर में देखूं तो मुझे पता है एंगल I1 इक्वल टू एंगल डेल्टा 1 प्लस R1. अगर मैं देखूं तो एंगल I इक्वल टू होता है फ्रॉम फिगर, एंगल I इक्वल टू होता है डेल्टा 1 प्लस R1, क्योंकि ये I इन दो एंगल के बराबर है. तो फ्रॉम हियर आई कैन से डेल्टा 1 इक्वल्स टू I माइनस R1, इक्वेशन 1. E equals to what? Delta 2 plus R2. So from here delta 2 can be written as E minus R2, equation number second. We know deviation produced by the prism, delta equal to delta 1 plus delta 2. For putting the values, I can say delta equals to I minus R1 plus E minus R2, or I can say delta equals to I plus E minus R1 plus R2. This is equation number 3. Now we will make use of the figure here, and from figure, in quadrilateral AQOR, अगर क्वाड्रिलेटरल AQOR की बात करूं तो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R मस्ट बी इक्वल टू 360. हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर एंगल का जो इंटरनल एंगल है उनका सम 360 होता है. बट आई नो एंगल ए प्लस एंगल क्यू इज 90 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल क्यू इज 90 डिग्री. तो 90 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इज ऑल्सो 90 डिग्री. आई कैन से 360 डिग्री. और फ्रॉम हियर आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री. पुट इट इक्वेशन नंबर 4. ये मेरे पास इक्वेशन 4 आया. अगर मैं ट्राइंगल क्यू ओ आर की बात करूं, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू ओ आर, अगर ट्राइंगल क्यू ओ आर की बात की जाए तो क्या होगा? हमें पता है from triangle QOR we know angle O plus angle R1 plus angle R2 should be equal to 180 डिग्री. क्योंकि इस ट्राइंगल में तीन एंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, R1 R2 एंड O. एंगल R1 R2 एंड O, तो यहां से भी कह सकता हूं एंगल O इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2. इन दोनों एंगल को अगर मैं उस तरह भेज दूं तो ये मेरे पास आएगा. और अगर ये एंगल O की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 4 में रख दूं तो फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 में अगर एंगल की वैल्यू रख दूं तो एंगल A प्लस एंगल O की जगह मैं रखूंगा 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180. 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और व्हाट रिमेन्स एंगल A इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन. और अगर मैं एंगल R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम 3 आई कैन से डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A. यही है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म. समटाइम्स डेल्टा प्लस A कैन बी रिटन एज I प्लस E. तो ये एग्जाम में कई बार करने को आ जाता है. आपको करने के लिए एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस.
तो दिस इज द study of refraction through a prism and the deviation produced by a prism, factors upon which angle of deviation depends. So there are four factors at which angle of deviation depend. Number one, angle of incidence. Number two, wavelength of light used, lambda. Number three, refractive index or material of the prism, mu. Number four, angle of prism, यानी angle A. Now we will see the minimum deviation produced by a prism. A prism is said to produce minimum deviation if it is placed symmetrically to the light rays. एक prism minimum deviation produce करता है अगर ये light rays के symmetric रखा जाए. कैसे सिमेट्रिक रखा जाए और कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए प्रिज्म टू प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन. एक प्रिज्म किन कंडीशंस में मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा. तो दीज थ्री आर द फैक्टर्स ऑफ मिनिमम डेविएशन. नंबर वन, ए प्रिज्म इज सेड टू लाई सिमेट्रिकली इफ एंगल आई बिकम्स इक्वल टू एंगल ई. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं दैट वी कॉल सिमेट्रिक प्लेसमेंट ऑफ द प्रिज्म. नंबर टू, जब प्रिज्म सिमेट्रिक होता है तब इनसाइड द प्रिज्म एंगल R1 और एंगल R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं. नंबर थ्री, रिफ्रैक्टेड रे गोज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म. यानी जब एक प्रिज्म सिमेट्रिक रखा होगा तो लाइट रे इसके बेस के पैरेलल जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल हो जाएगा. एंगल R1 बिकम्स इक्वल टू एंगल R2. नाउ वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफिकल वेरिएशन करूं तो कैसे ये वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ. लेट अस सी. इफ वी वेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस देन वी ऑब्जर्व. जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करते हैं तब हम देखते हैं दैट ऑन इंक्रीजिंग आई, जब मैं आई को बढ़ा रहा हूं, यहां जीरो से मैंने ये इस एक्सिस पर मैंने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एक्सिस पर मैंने लिया एंगल ऑफ डेविएशन. व्हेन आई इंक्रीज एंगल ऑफ incidence, then angle of deviation first decrease and then becomes minimum at a point when I becomes equal to E. जब I और E दोनों इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ डेविएशन becomes minimum that we call delta M. And if I increase the angle I further I equal to E situation, then we see the angle of deviation start increasing. So we can say the point when I becomes equal to E, जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर केस पर डेविएशन बिकम्स मिनिमम यानी डेल्टा एम. तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन कर्व. ये हमारा मिनिमम डेविएशन कर्व है. कई बार एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो कहता है प्रूव दैट फॉर एनी डेविएशन अदर देन मिनिमम डेविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपको प्रूव करना है एंड देयर इज नो एनालिटिकल प्रूफ फॉर दिस. इट इज ए सिंपल ग्राफिकल प्रूफ. ड्रॉ ए मिनिमम डेविएशन कर्व. यू विल सी दैट व्हेन I equal to E, then there is only one angle of incidence for which minimum deviation is achieved. यानी सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अचीव होता है. इफ आई टेक एनी अदर डेविएशन, सपोज मैंने यहां कोई डेविएशन डेल्टा लिया, डेल्टा से जब मैं इधर प्लॉट करता हूं तो एक बार कर्व यहां कट करता है, एक बार कर्व यहां कट करता है. अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 का आ जाएगा. बट इसी वैल्यू पर ये यहां पर मुझे दूसरा डेविएशन भी मिल जाता है जो है किसी एंगल I2 के कोरस्पॉन्डिंग. तो यहां से आई कैन सिंपली से दैट एनी डेविएशन डेल्टा कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल I1 एंड एंगल I2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो दिस वे यू कैन प्रूव दिस simple note. Once again I am going to repeat the note. Note says that for all delta या for all angle of deviation other than minimum deviation there are two angle of incidence. This is proved. At last now we come to prism formula. Prism formula is a formula relating refractive index of a prism, its angle of prism and the angle of minimum deviation. मैथमेटिकली अगर मैं इसको देखूं तो इट कम्स म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2. तो ये हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला इन मैथमेटिकल फॉर्म.
In theoretical form, it is a formula relating refractive index, prism angle, and the angle of minimum deviation. How to prove it? We know that deviation produced by a prism is given by delta equal to I plus E minus A. We have derived just few minutes before. We also know that angle of prism is equal to R1 plus R2. But when a prism produces minimum deviation, means when delta tends to delta m, then I equal to E. ये इसकी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन थी. जब डेल्टा डेल्टा m बन जाता है तब उस टाइम I becomes equal to E, और उस टाइम R1 becomes equal to R2 एंड से R, मैंने कोई वैल्यू R मान ली कि दोनों एंगल की जो वैल्यू है R1 R2 की वो किसी वैल्यू R की इक्वल होगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा इक्वल टू था I प्लस ई माइनस ए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा एम इक्वल टू I प्लस आई माइनस ए. ई की जगह भी मैंने I रख लिया. इट हैज बिकम 2I बिकम्स इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए. ये ए इधर लेगा प्लस का हो जाएगा और I यहां से आएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2. ये है इक्वेशन नंबर 3. जब मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 2 की, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 देखूं तो मेरे पास आता है A इक्वल टू R1 प्लस R2. बट मुझे पता है R1 और R2 दोनों की वैल्यू तो R थी, तो R प्लस R यानी इट हैज बिकम 2R, और फ्रॉम हियर R बिकम्स इक्वल टू A बाई 2. दैट आई कॉल इक्वेशन 4. इफ आई राइट स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन, देन हमें पता है स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ12 फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और आई कैन से μ2 अपॉन μ1. बट अगर μ1 एयर हो यानी मीडियम 1 रेयर, मीडियम जो है हमारा वो एयर हो, μ1 इक्वल टू 1 हो, देन μ2 कैन बी रिटन एज μ, और यहाँ μ इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास साइन I की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2. तो दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला रिलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, angle of minimum deviation and angle of prism. So this is all about today's class. Thank you for watching.